آزاد: خیر اگر بندے ہی کا قصور ہے تو معاف فرمائیے، مگر خدا کے لیے اتنا تو ضرور بتائیے کہ اس ٹکڑی میں کون کون ذات شریف جمع تھے، اتنا ہم پر احسان کیجیے۔ بزرگوار: ذات شریف؟ سبحان اللہ، خوب پہچانا۔ ایک قبلہ یہ سب شریف زادے تھے، اہل قلم، عالی خاندان، مانی دودمان، لائق فائق، بزلہ سنج، خوش فکر، تربیت یافتہ، دن بھر اپنے اپنے کام میں رہتے ہیں، شام سے آدھی رات تک یہاں جمتے ہیں۔ چوسر، شطرنج، گنجفہ، چہل مذاق، لپاڑگی، یہی عیش زندگی ہے۔ بہار عمر ملاقات دوست داراں است، چہ خط برد خضرز عمر جاویداں تنہا۔ آزاد: کیوں حضرت، بھلا کوئی اور شغل بھی رہتا ہے یا چکمہ ہی اڑا کرتا ہے؟ بزرگوار: اور کیا چانڈو پئیں، سبزی اڑائیں، افیون گھولیں، تاڑی منگوائیں؟ 10-5 ہمسن بیٹھے، خوش گپی ہونے لگی، یارانے چوری نہ پیرانے دغا بازی۔ آزاد: اجی خدا کی مار، ایسے اشغال بیہودہ پر ہم حال ہی میں خوب غور سے تجویز کر چکے ہیں کہ کرمی کہار لوہار نیچ قوم دن بھر لہو پسینہ ایک کر کے شام کو خوش خوش گھر آتے ہیں اور اپنے اپنے مذاق کے موافق طرح طرح کے اشغال میں مصروف رہتے ہیں۔ کوئی ڈفلی، کوئی ہڑک بجاتا ہے، کوئی دن بھر کا تھکا ماندہ مزے سے لیٹا ہوا کہانی کہہ کر اپنے عزیزوں کو خوش کرتا ہے، لیکن واہ رے اہل قلم، واہ رے شریف زادو، جب دیکھو گنجیفہ ہو رہا ہے۔ 1 2 3 لا بوجھ کو چھین، رو سے 4 جا کے براتے عاشقاں پر شاخ آہو، 7 8 9 9 برابر 100 پشت دکھا دو۔ وہ تاج کیوں سچ کہنا کس قماش کی بوجھ نکالتے ہیں؟ آفتاب آیا ہے سورج کنڈھ میں، اب کی اللہ نے چاہا تو 2 دستہ ہو، نادری چڑھے تو پھر دل لگی دیکھیے، ہفتوں مہینوں برسوں پتوں ہی کی الٹ پھیر رہی، جب دیکھو ورق گردانی، جیتے تو بشاش ورنہ پشیمانی، واہری نادانی۔ 20 دور ہو گئے مگر طبیعت سیر ہوئی، چوسر کی طرف جھک پڑے تو تڑکا کر دیا، بازی پر بازی، سہ اور پنج اور شش کے داو لگا رہے ہیں، آپس میں گتھم گتھا، گلخپ مار دہاڑ لڑائی تکرار، رنگ بدرنگ کے پھیر میں عمر گوائی، پاسے پھینکتے پھینکتے ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے، لا حول ولا قوت، لکھنا پڑھنا چھوڑا، احباب سے ملنا ترک کیا، خط کتابت سے ہاتھ دھویا، جو پیدا کیا وہ سب کھویا، مطالعہ کتب کا شوق، نہ اخبار بینی کا ذوق، صبح چوسر، شام چوسر، ادھر چوسر ادھر چوسر، الہی خیر اور لطف یہ کہ بکارنے کو موجود کہ ہم شریف ہیں، تربیت یافتگی کا دم بھرتے ہیں، ہمچو من دیگرے نیست، اور افعال ایسے قبیحہ و دنیا، ان سے تو کوری کہار ہی اچھے کہ اپنے پیشے اور اپنی تھوڑی سی عقل کے موافق دل بستگی کی تو صورت نکالتے ہیں، مانا کہ ان کے اشغال بھی تعریف کے لائق نہیں۔ رشائل مردوں کا پھریلا اوڑھ کر تھرکنا نفرت انگیز فعل ہے، مگر وہ منطقی فلسفی تو ہے نہیں، تربیت یافتہ علم سے آشنا، آپ تو دون کی لیتے ہیں، اور بائیں ہما لن ترانی، وہی ڈھاک کے 3 پات۔ وقت فرصت ہوا کھائیے، کتب خانہ جائیے، جلسہ تہذیب جائیے، کتب مفید مطالعہ کیجیے، لیکچر یا تصانیف لطیف کی فکر موصول فرمائیے، تو ہم سمجھیں کہ تربیت یافتہ ہیں، یہ نہیں کہ جواریوں کی طرح تہذیب کی خواری کریں، یکلو اور کھیلے آلہ اور کھیلے سر اور 18 اور 5 2 کے سوا اور کچھ نہ سیکھیں، اور ہر شب کو بدبدا گنجیفے یا چوسر میں مخزن کی۔ رنگ سیار: میاں آزاد زلف پریشاں کی یاد میں رات بھر خواب پریشاں دیکھا کیے، تڑکے خواب خرگوش سے بیدار ہوئے تو پھر سنیچر پاؤں پر سوار ہو گیا، دوپہر تک بے آب و دانہ، ہر دم خیال وصل جانانہ، دوپہر ڈھلے ایک قصبے میں پہنچے، پیپل کے پیڑ کے سائے میں بستر جمایا، سبزائے بیگانہ کو اپنا مسکن بنایا، پیپل کے دھانی دھانی پتوں کی رنگت پر جو نظر پڑی تو سبزان رنگی ادا کا حسن برشتہ یاد آیا،
कलेजे पर सांप लौटने लगे। थके मांदे चले आते थे। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से ज़रा दिल को ढाढ़स हुई। पाँव फैलाकर लंबी तानी तो दुनिया व माफिया की खबर नहीं। जब खूब नींद भर कर सो चुके तो एक मर्द आदमी ने जगा दिया। इल्ला लिल्ला कहकर उठ बैठे। वहशत किसी कदर दूर हो गई थी, मगर प्यास के मारे हलक में कांटे पड़ गए थे। सामने इंदारे पर एक गुलबदन सीम तन औरत अजब नज़ाकत से पानी भर रही थी। हज़रत भी पहुँचे। आज़ाद, क्यों नेक बख्त, हमें एक ज़रा सा पानी नहीं पिलाती? भरना दूबर हो तो लाओ, हम भरें, तुम भी पियो हम भी पिएं, एहसान होगा। सीमतन, जवाब नदारद, तीखी चितवनों से भरपूर नज़र डाली, मगर कहर की भरी हुई। आज़ाद, सखी से सोम भला जो तुरंत देवे जवाब। बीवी पानी पिलाओ या टका सा जवाब दो। ये कस्बा तो अपने हक़ में दश्ते करबला हो गया। एक बूंद पानी को तरस तरस गए। अब तो आबे खंजर की चाह है। एक दफ़ा दुज़दीदा निगाह से फिर देख लो तो पानी भी ना मांगूं। सीमतन, लब तक ना हिले। सुकूत, मगर एक नाज़े माशुकाना से ज़र्फ़े सीमी भर कर पानी ले चली। आज़ाद, भाई अच्छा गांव है, जो बात है अनोखी, जो रीत है निराली। एक आबखोरा पानी ना मिला, वाहरी किस्मत। लोग तो इस भादों की जलती मलती धूप में पोशाले बिठाते हैं, केवड़ा पड़ा हुआ आबे सर्द पिलाते हैं। यहाँ केवड़ों की झनकार, न सबील की पुकार। मियाँ आज़ाद को हैरत थी कि ये कमसिन नाज़नीन, ये मुश्क अफशां बाल और मस्ताना चाल, यहाँ वीराने में इसका क्या काम? साए की तरह साथ हो लिए। वो कनखियों से देखती जाती थी, मगर मुंह नहीं लगाती थी। बारे सड़क से दाएं हाथ पर एक खुशनुमा फाटक के करीब वो गुलफाम सीमंदाम ठहर गई। ज़र्फ़े सीमी को दूसरे हाथ में लिया और पेड़ के साए में बैठकर सुस्ताने लगी। आज़ाद, हम भी हमराहे रकाब हैं। हम ताड़ गए कि नज़ाकत के मारे ये हल्का फुल्का बर्तन ही पहाड़ हो गया। इशारे की देर है, ज़रा लब हिलाओ तो हाथ बटा लूँ। कसम लो जो एक कतरा भी पीऊँ। गो प्यास की शिद्दत से कलेजा मुँह को आता है, दम निकला जाता है, और चाहूँ तो छीन लूँ, लेकिन तुम्हारा दिल दुखाना मंजूर नहीं। इसमें चाहे जान पर बनाए अफसोस ये चेहराए नूरानी और ये नामेहरबानी। उस नाजूराए ताउस ज़ेब व आबिद फरेब ने फिर उस बर्तन को बड़ी कोशिश से उठाया और फाटक के अंदर हो रही। मियाँ आज़ाद ने एक दर्दंगेज़ आवाज़ से हस्बे हाल एक शेर पढ़ा और चुपके चुपके खुद भी फाटक में दबे पांव उस गुल आज़ार के पीछे पीछे गए। वो राना शुमाइल एक खुले हुए छोटे से बंगले में जा बैठी। मियाँ आज़ाद एक रविश में दुबक रहे। गो शैतान दरगलाता था कि चल कर जुल्फ़े चलीपा की बलाएं लें, मगर डर था कि कहीं ये काली नागिन डस ना जाए। और तहज़ीब भी माने थी। जी भर भर आता था, मगर कदम आगे नहीं बढ़ता था। तंग आया हूँ निहायत खातिरे मुश्ताक से, हर घड़ी कहती थी चल, हर वक्त समझाती थी हाँ। अब उस फरह बख्श व दिलकुशा मकाम नुदरतुल क़याम का ज़िक्र सुनिए। चौतरफा खाई खुदी हुई, 8-8 गज़ गहरी, सरपत इर्द गिर्द बोई हुई, ऐसी घनी कि चिड़िया तक का गुज़र ना हो सके। और वो तेज़ के तलवार गर्द, बड़ा आलीशान महराबदार फाटक लगा हुआ है। वो जोहरदार शीशम की लकड़ी के बायदो शायद क्यारियाँ डरेंची जाती थीं। रोशों पर सुर्खी कटी थी। अशजार पर बहार गोया आसमान से बातें करते हैं। कहीं अनार की कतार, कहीं लखवट की बहार। इधर अम्बाए लजीज व शीरीं, उधर अमरूद हलवाए बेदरूद। चकोतरों और महराबियों से टहनियाँ फटी पड़ती थीं। नारंगी और मीठे शाखों पर लदे थे। फूलों की बूबाश, कहीं गुले मेहंदी, कहीं गुले अब्बास। निवाड़ी फूली हुई, चौतरफा आलमे नूर है। हर सिमत लुत्फ़े मोफूर है। ठंडी ठंडी हवा, ऊदी ऊदी घटा,
कलियों की चटक, जूही की फबती महक, कलखे की दहक, कनील की धमक। वुसअते बाग में एक 3 फुट का ऊंचा पक्का मुरब्बा चबूतरा बना है और एक कोने में छोटा सा खुशनुमा बंगला है। अगल बगल 2 एक साफ सुथरी कोठरियाँ। ये तो सब कुछ है, मगर मकीन का पता नहीं। उस सीम तन की चाल ढाल और तर्ज़े नशिश से अजनबियत बरसती थी। हैरत थी कि इस बाग़े लताफ़त बार के मकीन सलीका शियार कहाँ छिप रहे। बाग़ है पर अजब है ये रूदाद, न कहीं आदमी न आदमजाद। गुल हैं सब अपनी अपनी जोबन पर, बुए गुल है सबा के तोसन पर। है अजब लुत्फ़ पर शगुफ़ा गुल, कहीं शबू खिली कहीं संभुल। इन्होंने देखा कि वो बुते तन्नाज सरमाया नाज ज़रफ़े सीमी ज़मीन पर पटक कर एक निवाड़ी की नाजुक पलंगड़ी पर सो रही। अब तो इनको खूब ही मौका मिला। उठे और मेवाए तर जिस कदर जी चाहा खूब छिक्कर खाए और उस ज़रफ़े सीमी को मुंह से लगाया तो एक एक क़तरा पी गए। इतने में पाँव की आहट सुनाई दी। मियाँ आज़ाद झट अंगूर की टट्टी में छिप रहे, मगर ताक लगाए बैठे हैं कि देखें है कौन। देखा तो फाटक की जानिब से कोई आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। करीब आया तो इन्होंने बगौर नज़र डाली। एक कशीदा कामते लहीम व शहीम, डंड पेल चिट लंगोट बांधे, अकड़ता ऐंठता इस बंगले की तरफ जाता है। समझे कि कोई पहलवान कुश्तीगीर अपने अखाड़े से वापस आता है। करीब आया तो ये गुमान दूर हो गया। मालूम हुआ कि कोई शाहजी हैं। वो चिट लंगोट जिससे पहलवान का धोखा होता था तहबंद निकला। शाह साहब सीधे बंगले में दाखिल हुए। सीम तन को पलंगड़ी पर सोता पाया। एक दफ़ा ही पलंगड़ी पर हाथ मार कर चिल्ला उठे, उठ हुक्म माबूद। वो जन्ने राना शुमाइल घबरा कर उठ बैठी। उठते ही कदम लिए। शाहजी ने फ़रते शफ़क़त से उसकी जबीन नूरानी और चीने पेशानी पर बोसा दिया और एक तिपाई पर बैठकर यूं तकरीर करने लगे। शाहजी, बेटी आज तुमको हमारे सबब से बहुत राह देखनी पड़ी। एक गांव में यहाँ से 10 कोस पर एक राजा रहता है, मगर 80 बरस का हो गया। अल्लाह ने उसे लड़का दिया न लड़की। एक दिन मुझे बुलवाया। मैं कहीं को जाता आता तो हूँ नहीं। वो रानी को लेकर आप आया। कदमों पर गिर पड़ा। मैंने रानी के सर पर एक गुलाब का फूल बिन सूंघा दे मारा। 5वें ही महीने अल्लाह ने लड़का दिया। राजा मेरे पास दौड़ा आता था कि मैं राह में मिला। देखते ही मुझे रथ पर बिठा लिया। कहता है रुपया लो, जागीर लो, गांव लो, हाथी घोड़े लो, मगर मैं कब मानता हूँ। इस वक्त पीछा छूटा। तुम पानी लाई होंगी, लो मैं फूंक दूंगा, जिसमें तुम ना महरूम ना रहो। सीमतन, मैं आपकी लोंडी हूँ। यही क्या कम है कि आपकी ज़ियारत नसीब हुई। पानी वो रखा है, आप फूंक डालें तो मैं रुखसत हूँ। ये कहकर सीमतन उठी। देखा तो ज़र्फ़ मौजूद, मगर पानी ना दारद। ये पानी क्या हुआ? ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। अभी पानी रखा, देखते ही देखते उड़ गया। है शाह साहब, आपके पास मैं छोटी बनी, मेरी बड़ी किरकिरी हुई। ज़मीन फट जाए तो मैं धंस जाऊं। ए लो गज़ब खुदा का, एक बूंद तक नहीं। अल्लाह जानता है लबालब भरा था। शाह जी, बता ही दूं? अच्छा, अब बेचैन ना हो। मुझे इशराक से मालूम हो गया कि तुम आई हो। जब तुम सो रही तो मैंने आंख बंद की और यहाँ पहुँच गया। पानी पिया, फिर आंख बंद की और राजा के पास हो रहा। फूंक डालने की साथ इसी वक्त थी। टल जाती तो फिर 1 महीने पर बात जाती। ये इलायची लो और कल आधी रात को किसी मरघट में दफना दो, बस मतलब हासिल हो जाएगा। सीमतन ने इलायची ली और उसी दम वापस गई।
میاں آزاد چپکے سب سن رہے تھے۔ اب انہیں خوب ہی معلوم ہو گیا کہ شاہ جی رنگے سیار ہیں۔ آفتابے کا پانی تو انہوں نے پی لیا تھا اور شاہ صاحب نے مانن یہ بٹی کہ آنکھ بند کرتے ہی یہاں آئے اور پانی پی کر کسی ترکیب سے چل دیے۔ یہ سن کر آزاد خوب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ شاہ جی کی باتوں سے ان کے دل پر نقش ہو گیا کہ بڑے ہی ذات شریف ہیں۔